بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 64 پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق تیونس کے حصہ چہارم پر مشتمل ہوگا۔ سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق تیونس کے حصہ سوم پر مشتمل تھا۔ اس سبق کے اندر ہم نے اس ملک کے سلسلے حالات و واقعات کا جائزہ لیا اور یہ اس سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ تھا۔ اسی طرح دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کے نظام حکومت پر گفتگو کی تھی۔ آج کے سبق کی اہم ابحاث جان لیتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا تیونس کے حصہ چہارم پر مشتمل ہے اور اس سبق کے اندر ہم تیونس کے وسائل پر گفتگو کریں گے۔ آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ اس ملک کے اندر پائی جانے والی معدنیات ہوگا۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کے قابل تجدید توانائی کے ذرائع پر گفتگو کریں گے۔ اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ اس ملک کے اندر پائی جانے والی زراعت ہے اور چوتھے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کے اسٹریٹجک جغرافی محل وقوع کے بارے میں جانیں گے۔ آج کے سبق کا ہمارا پانچواں اور آخری پوائنٹ اس ملک کی سیاحت ہوگا۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب یعنی تیونس کی معدنیات کی جانب اور جانتے ہیں کہ اس کے پاس کس قدر معدنیات کے ذخائر موجود ہیں۔ تیونس کے معدنی وسائل میں فاسفیٹس، ہائیڈرو کاربن اور دیگر صنعتی معدنیات جیسے سیسا، زنک اور آئرن کے کافی ذخائر شامل ہیں۔ تیونس میں کانکنی کی صنعت 19ویں صدی سے پھیل رہی ہے اور یہ ملک کی معیشت میں اہم شراکت رکھتی ہے۔ تیونس میں کانکنی کی جانے والی سب سے اہم معدنیات میں سے ایک فاسفیٹس ہے۔ وہ بنیادی طور پر کھاد پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے لیکن وہ دیگر چیزوں جیسے کہ دوا سازی، خوراک اور جانوروں کی خوراک میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ تیونس فاسفیٹ چٹان کا ایک سرکردہ برآمد کنندہ ہے اور دنیا کی سپلائی کا ایک اہم حصہ ہے۔ ایک اور اہم معدنیات جو توجہ کی مستحق ہے وہ لوہا ہے جو پورے تیونس میں بھی وسیع پیمانے پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ تیونس میں لوہے کی کانکنی صدیوں سے جاری ہے جس میں وقت کے ساتھ ساتھ کانکنی کی مختلف تکنیکیں استعمال ہوتی رہی ہیں۔ آج کل لوہے کی کانکنی کے لیے جدید طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جو پھر اسٹیل کی پیداوار میں استعمال ہوتا ہے۔ سیسا اور زنک بھی اہم معدنیات ہیں جن کی کانکنی تیونس میں کی جاتی ہے اور وہ عام طور پر ایک ساتھ پائے جاتے ہیں اور ایک ہی طریقے سے نکالے جا سکتے ہیں۔ ان معدنیات سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں جیسے بیٹریاں، پینٹ اور مرکب دھاتوں میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ پہلا پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے تیونس کی معدنیات پر گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم اس ملک کے قابل تجدید توانائی کے وسائل پر غور کریں گے۔ تیونس میں قابل تجدید توانائی کے سب سے نمایاں وسائل میں سے ایک شمسی توانائی ہے۔ ملک سالانہ 3000 گھنٹے سے زیادہ سورج کی روشنی سے لطف اندوز ہوتا ہے جو اسے شمسی توانائی کی پیداوار کے لیے ایک مثالی مقام بناتا ہے۔ حکومت سولر فارمز میں فعال طور پر سرمایہ کاری کر رہی ہے اور رہائشی اور تجارتی عمارتوں پر سولر پینل کے استعمال کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ تیونس میں قابل تجدید توانائی کا ایک اور اہم ذریعہ ہوا کی طاقت ہے۔ ملک کی شمالی ساحلی پٹی مضبوط اور مسلسل ہواؤں کا تجربہ کرتی ہے جو ہوا سے توانائی کی پیداوار کے لیے بہترین حالات پیدا کرتی ہے۔ حکومت ونڈ پاور پروجیکٹس کو فعال طور پر سپورٹ کر رہی ہے اور اس نے 2024 تک 1000 میگا واٹ نصب شدہ ونڈ انرجی کی صلاحیت تک پہنچنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ تیونس میں پن بجلی پیدا کرنے کی بھی کافی صلاحیت موجود ہے۔ نسبتاً خشک ملک ہونے کے باوجود اس میں کئی دریا اور آبی ذخائر ہیں جو پن بجلی کے منصوبوں کے لیے موزوں ہیں۔ حکومت کے پاس چھوٹے پیمانے پر پن بجلی گھروں کی نصب صلاحیت کو بڑھانے کا منصوبہ ہے جو اس وقت دور دراز علاقوں کو بجلی فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پمپڈ اسٹوریج ہائیڈرو پاور کی صلاحیت کو تلاش کرنے کے منصوبے ہیں جو توانائی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت فراہم کر سکتے ہیں۔ تیونس میں جیو تھرمل توانائی ایک اور قابل تجدید وسیلہ ہے۔ یہ ملک بحیرہ روم کے طاس پر بیٹھا ہے جو اپنی جیو تھرمل سرگرمیوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ جیو تھرمل توانائی بجلی اور حرارتی نظام کا ایک مستحکم اور قابل اعتماد ذریعہ فراہم کر سکتی ہے۔ فی الحال حکومت مستقبل کی ترقی کے لیے ممکنہ جیو تھرمل سائٹس کی نشاندہی کرنے کے لیے ریسرچ اور اسسمنٹ اسٹڈیز کر رہی ہے۔ تیونس میں بایو ماس کو قابل تجدید توانائی کے وسائل کے طور پر بھی سمجھا جا رہا ہے۔ اس کے مضبوط زرعی شعبے کے ساتھ فصلوں کی باقیات، جانوروں کے فضلے اور جنگلات کے فضلے سے بایو ماس کی پیداوار کے قابل ذکر امکانات ہیں۔
बायोमास को बिजली पैदा करने के साथ साथ हरारती मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अजीज तलबा कराम, इस तरह आज के सबक का हमारा ये दूसरा पॉइंट भी मुकम्मल हुआ, जिसके अंदर हमने ट्यूनिस की काबिल तजदीद तवानाई के वसाइल पर गुफ्तगू की। अब चलते हैं आज के सबक के अगले पॉइंट की जानिब, जिसके अंदर हम ट्यूनिस की ज़राअत पर गुफ्तगू करेंगे। ज़राअत ट्यूनिस के बहुत से लोगों की माईशत और माश में अहम किरदार अदा करती है। मुल्क की मुतनव्वे आबो हवा, जरखेज जमीनों और हुकूमत की मदद ने ट्यूनिस को एक मजबूत ज़रई शोबे को तरक्की देने के काबिल बनाया है, जो इसके ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, बरामदात और देही तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। ट्यूनिस के ज़रई शोबे में फसलों की एक वसी रेंज की खुसूसियत है, बशमूल अनाज, फल, सब्जियां, जैतून, खजूर और मवेशियों की पैदावार। ट्यूनिस में एक अहम ग़िज़ा है गंदम, जो मुल्क में काश की जाने वाली अहम फसलें हैं। हुकूमत ने अनाज की पैदावार को सपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियां लागू की हैं, जिनमें बीज और खाद जैसे मवाद के लिए सब्सिडी फराहम करना, आपाशी की तकनीक को बेहतर बनाना और इस शोबे में तख्लीक और तरक्की को फरोग देना शामिल है। ट्यूनिस अपने आला मयार के जैतून के तेल की पैदावार के लिए भी जाना जाता है। जैतून के दरख्त ज़रई जमीन के एक अहम हिस्से पर मुहित हैं, खासतौर पर मुल्क के शुमाली और वस्ती हिस्सों में। जैतून के तेल की सनत बहुत से किसानों की आमदनी का एक अहम जरिया और घरेलू इस्तेमाल और बरामदात दोनों में हिस्सा डालती है। ट्यूनिस दुनिया में जैतून का तेल पैदा करने वाले सबसे बड़े ममालिक में से एक है और अपनी मसनूयात के मेयार को यकीनी बनाने के लिए नामियाती और पायदार काश्त के तरीकों पर तवज्जो मरकूज करता है। ट्यूनिस की ज़राअत में फल और सब्जियां भी नुमाया हैं। ये मुल्क बहरे रूम की हल्की आबो हवा से फायदा उठाता है, जो मुख्तलिफ किस्म के फलों और सब्जियों के लिए साजगार हालात फराहम करता है। संतरा, लीमू और चकोतरे बड़े पैमाने पर उगाए और बरामद किए जाते हैं। दूसरे फल जैसे सेब, नाशपाती, आड़ू और खरबूजे भी काश्त किए जाते हैं। टमाटर, खीरे, काली मिर्च और आलू जैसी सब्जियां ट्यूनिस के खानों में अहम हैं। हुकूमत ने आपाशी के बुनियादी ढांचे, तहकीक और तरक्की में सरमायाकारी और जदीद काश्तकारी तकनीक के फरोग के जरिए से इस शोबे की मदद की है। खजूर ट्यूनिस में एक मशहूर फसल है और इसकी सकाफती और इक्तिसादी अहमियत है। मुल्क में खजूर की काश्त की एक तवील तारीख है और ये अपनी आला किस्म की खजूर के लिए जाना जाता है। खजूर न सिर्फ मकामी तौर पर खाई जाती है बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को भी बरामद की जाती है। हुकूमत ने खजूर की काश्त को सपोर्ट करने के लिए प्रोग्राम नाफिज किए हैं, जिनमें माली मराहत, तकनीकी मदद और खजूर की प्रोसेसिंग की सहूलियात के क़याम की हौसला अफजाई शामिल है। मवेशियों की पैदावार ट्यूनिस की ज़राअत में भी अहम किरदार अदा करती है। गाय, भेड़, बकरियां और मुर्गी मुल्क में पाले जाने वाले अहम मवेशी हैं। लाइव स्टॉक फार्मिंग खुराक की पैदावार में हिस्सा डालती है, रोजगार के मौके फराहम करती है और देही बरादरियों के लिए आमदनी के ज़राए को मुतनव्वे बनाने में मदद करती है। हुकूमत ने जानवरों की सेहत को बेहतर बनाने, अफजाइश नस्ल के प्रोग्रामों को बढ़ाने और मवेशियों की पैदावार में पायदार तरीकों को फरोग देने के लिए इक़दामात नाफिज किए हैं। मज़कूरा फसलों और मवेशियों के अलावा ट्यूनिस में शहद की मक्खियों को पालना ये भी एक सनत है, जो आला मयार का शहद और शहद की मक्खियों से मुतालिक दीगर मसनूआत तैयार करती है। मुल्क मुतनव्वे नबातात से फायदा उठाता है। शहद की मक्खियों के लिए अमरत के काफी ज़राए फराहम करता है। अजीज तलबा कराम, इस तरह आज के सबक का हमारा ये पॉइंट भी मुकम्मल हुआ, जिसके अंदर हमने ट्यूनिस की ज़राअत पर तफसीलन गुफ्तगू की। अब चलते हैं आज के सबक के अगले पॉइंट की जानिब, जिसके अंदर हम इसके स्ट्रेटेजिक जोग्राफी महल वक़ू का तज्जिया करेंगे। ट्यूनिस बहरे रूम के साहिल पर वाक़ है, जो इसे यूरोप, अफ्रीका और मशरिक़ वुस्ता के दरमियान एक गेट वे बनाता है। इस स्ट्रेटेजिक पोजीशन ने ट्यूनिस को पूरी तारीख में एक अहम तिजारती और नक़ल व हमल का मरकज बना दिया है। मुल्क की साहिली पट्टी बैनुल अक़वामी जहाज़रानी के रास्तों तक रसाई की पेशकश करती है, जो पड़ोसी ममालिक और इससे आगे के साथ मौसर तिजारती रवाबित को काबिल बनाती है। मजीद बरात ट्यूनिस की बंदरगाहें इलाके में दाखिल होने और जाने वाले सामान के लिए अहम दाखिली मकामात के तौर पर काम करती हैं। ट्यूनिस की सरहदें मगरब में अलजायर और जनूब मशरिक में लीबिया से मिलती हैं। इन सरहदी राब्तों के ट्यूनिस के लिए फवायद और चैलेंजेस दोनों हैं। मुस्बत पहलू से मुश्तरका सरहदें इलाकाई तावन और इक़्तिसादी इंज़माम को बढ़ाती हैं। ट्यूनिस अपने पड़ोसी ममालिक के साथ तिजारत और सरहद पार सरमायाकारी से फायदा उठाता है, जो इक़्तिसादी तरक्की में हिस्सा डालता है। ताहम लीबिया से क़ुर्बत ने सिक्योरिटी चैलेंजेस भी पेश किए हैं, खास तौर पर खित्ते में सियासी अदम इस्तेहकाम के दौरान। ट्यूनिस के जोग्राफी महल वक़ू का एक और अहम पहलू इसकी यूरोप से क़ुर्बत है। अतालवी जजीरे ससली से थोड़ी ही दूरी पर ट्यूनिस के तारीखी तौर पर यूरोपी ममालिक के साथ करीबी ताल्लुकात रहे हैं। इस क़ुर्बत ने सकाफती तबादले, तजारती ताल्लुकात और सियाहत के बाहों को सहूलत फराहम की है। मजीद बरात ट्यूनिस ने तजारती माहिदों, माली इमदाद और तकनीकी मदद के जरिए यूरोपीय यूनियन के साथ अपने ताउन से फायदा उठाया है, जिससे मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में मदद मिली है। मजीद बरात सहेल के इलाके में ट्यूनिस का महल वक़ू मगरब और सब
सहारा अफ्रीका के असरात को मिलाकर मुल्क को इन दोनों खित्तों के दरमियान खलीज को खत्म करने की इजाजत देता है। इस मुनफरिद मकाम ने ट्यूनिस की शनाख्त, सकाफत और माशरती हरकियात को तश्कील देने में किरदार अदा किया है। इसने ताउन और इलाकाई इक़दाम के मौके भी फराहम किए हैं, जैसे कि अफ्रीकी यूनियन और अरब लीग, जहाँ ट्यूनिस फाल तौर पर हिस्सा लेता है। ट्यूनिस का तस्वीराती जोग्राफी महल वक़ू कुदरती वसाइल और मुतनव्वे मनाजिर भी पेश करता है। शुमाल में जरखेज मैदानों से लेकर जुनूब में वसी रेगिस्तान तक यह मुल्क माहौलियाती निज़ाम और कुदरती खूबसूरती की एक हद पर फख्र करता है। इसने दुनिया भर से सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है और सयाहत की सनत की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है, जो ट्यूनिस के लिए आमदनी और रोजगार का एक अहम जरिया है। ट्यूनिस के स्ट्रेटेजिक जोग्राफी महल वक़ू ने मुल्क की तारीख, मईशत और सकाफती इंज़माम को तश्कील दिया है। यूरोप, अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता के दरमियान एक गेट वे के तौर पर इसकी पोजीशन ने इसे एक अहम तिजारती और नक़ल व हमल का मरकज बना दिया है। अजीज तलबा कराम, इस तरह आज के सबक का हमारा ये पॉइंट भी मुकम्मल हुआ, जिसके अंदर हमने इसके स्ट्रेटेजिक जोग्राफी महल वक़ू पर गुफ्तगू की। अब चलते हैं आज के सबक के सबसे आखिरी पॉइंट की जानिब, जिसके अंदर हम ट्यूनिस की सयाहत का जायजा लेंगे। ट्यूनिस अपने भरपूर तारीखी और सकाफती विरसे के लिए जाना जाता है। इस मुल्क में मुख्तलिफ तहजीबें आबाद हैं, जिनमें फोनीशियन, रूमी, अरब और फ्रांसीसी शामिल हैं। हर एक ने जमीन की तज़यीन पर अपना निशान छोड़ा है। ट्यूनिस मुतादिद यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की जगहों का घर है, जैसे कदीम शहर कार्थेज, एल्जेम का एम्फी थिएटर और ट्यूनिस का मदीना। यह साइट्स दुनिया भर से तारीख के शायकीन को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं, जो इन तहजीबों की बाकियात को दरियाफ्त करने और इंसानी तारीख में इनकी शराकत के बारे में जानने के लिए आते हैं। ट्यूनिस मुख्तलिफ किस्म के शानदार कुदरती मनाजिर का हामिल है। इसके बहरे रूम के साहिल के साथ कदीम साहिलों से लेकर जुनूब में नाहमवार पहाड़ों और वसी सहराए सहारा तक यह मुल्क मुतनव्वे मनाजिर पेश करता है, जो फितरत से मोहब्बत करने वालों और एडवेंचर के मुतलाशियों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। सयाहों के पास खूबसूरत रेतीले साहिलों पर आराम करने, दिलकश नेशनल पार्क में पैदल सफर करने और ऊँटों की ट्रैकिंग और सहराई कैंपिंग जैसी सरगर्मियों के जरिए सहरा की मुनफरिद खूबसूरती का तजर्बा करने का मौका है। ट्यूनिस सयाहों के लिए तफरीही सरगर्मियों की एक रेंज पेश करता है। मुल्क ने सियाहत का एक वसी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, जिसमें जदीद रिजॉर्ट्स, होटल्स और तफरीही सहूलियात शामिल हैं। पानी के खेल जैसे स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग और विंड सर्फिंग साहिल पर मकबूल हैं। मशहूर मेमारों के डिजाइन करदा गोल्फ कोर्सेज ने गोल्फ के शौकीनों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया है। इसकी इस्तिताअत भी सयाहों को राग़िब करने का एक बड़ा अंसर है। बहरा रूम के दीगर मकामात के मुकाबले में ट्यूनिस पैसे के लिए बेहतरीन कीमत पेश करता है। रिहाइश, खुराक और नकल व हमल के अखराजात निस्बतन कम हैं, जो मुसाफिरों को इस्तिताअत ट्यूनिस को मुसाफिरों की एक वसी रेंज के लिए काबिल रसाई ऑप्शन बनाती है। अब ये बताना जरूरी है कि ट्यूनिस में सियाहत की सनत को हालिया बरसों में खित्ते में सियासी आदम इस्तेहकाम और सिक्योरिटी खदशात की वजह से चैलेंजेस का सामना है। 2011 के इनकलाब और इसके बाद के वाकयात ने मुल्क में सियाहत पर खासा असर डाला है। ट्यूनिस ने हिफाजती इक़दाम को बढ़ाने और एक महफूज मंजिल के तौर पर अपनी तस्वीर को दोबारा बनाने की कोशिश की है। हुकूमत ने सयाहों को मुल्क में वापस लाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम नाफिज किए हैं, जिनमें सकाफती और तारीखी सियाहत को फरोग देना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना और सियाहत की पेशकश को मुतनव्वे बनाना शामिल है। अजीज तलबा कराम, इस तरह आज के सबक का हमारा ये पॉइंट भी मुकम्मल हुआ। इस पॉइंट के मुकम्मल होने के साथ ही हमारा सबक भी मुकम्मल होता है। आज के सबक का खुलासा जान लेते हैं। आज के सबक के अंदर हमने ट्यूनिस के वसाइल पर गुफ्तगू की। पहला पॉइंट हमारा आज के सबक का इस मुल्क की मदनियात था। दूसरे पॉइंट के अंदर हमने इस मुल्क की तवानाई पर गुफ्तगू की। आज के सबक का हमारा तीसरा पॉइंट इस मुल्क की ज़राअत था। इसी तरह आज के सबक के अंदर चौथा पॉइंट इस मुल्क का स्ट्रेटेजिक जोग्राफी महल वक़ू था। और आज के सबक के अंदर सबसे आखिरी पॉइंट जिस पर हमने गुफ्तगू की वो इस मुल्क की सयाहत था। तो इस खुलासे के साथ ही हमारा आज का सबक मुकम्मल होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।